صحت سے ہی زمانہ ہے، السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈی ڈی اردو کے پروگرام علم صحت میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پچھلی بار جب ہم نے بات کی تھی کس طرح سے یونانی طب ہندوستان پہنچی اور کس طرح لوگوں نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا، ایسی کیا خاصیت رہی ہوگی اس طب میں کہ باہر کی ہونے کے باوجود یہاں کے لوگوں نے اسے اپنایا۔ یوں تو یونانی طب میں کئی خاصیتیں ہیں، مثلاً بیماری کی پہچان کرنے کے طریقے۔ آج کی کڑی میں ہم اسی پر توجہ دیں گے۔ یونانی طریقہ علاج میں نبض کو بہت اہمیت دی گئی ہے، لیکن محض نبض کو محسوس کر کے ہی مریض کے حالات کا بیان کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے لمبے تجربے کی درکار پیش آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ تجربہ ایک دن میں تو آتا نہیں ہے۔ اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کئی سالوں کی کڑی محنت اور ریاضت کی، جو ایک بڑھیا حکیم کی دیکھ ریکھ میں ہی ہو پاتی ہے۔ یونانی جو طریقہ علاج ہے یہ ہولسٹک اپروچ کا حامل ہے۔ ہولسٹک اپروچ کا مطلب یہ ہے کہ پوری باڈی کو ایک جسم تصور کیا جاتا ہے اور ہر آرگن، ہر عضو ایک دوسرے سے جڑا ہوا مانا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی ایک آرگن میں کوئی تکلیف ہوگی، کوئی بیماری ہوگی، کوئی انفیکشن ہوگا تو دوسرے آرگنز بھی اس سے افیکٹڈ ہوں گے۔ اس لیے حکیم جو یونانی میڈیسن کا ڈاکٹر ہے وہ مریض کو اس کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور کس وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے اس وجہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سے امراض ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے ذہن سے، آدمی کی صورت دیکھ کے ہی معلوم ہو جاتے ہیں کہ کس شکل میں آدمی آ رہا ہے۔ ہمارے پاس جب مریض آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا شکل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد نبض دیکھتے ہیں۔ نبض دیکھتے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبض کی جو قوت ہے انبساطی اور انقباضی، یعنی ایک کھلنے کی اور ایک بند ہونے کی قوت ہے۔ مجھے دونوں کا احساس ہوتا تھا کہ بند ہونے کی قوت میں کیا اثر ہے اور کھلی میں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ آدمی اگر مشق کرے، آدمی سمجھ سکتا ہے کہ کس مرد میں کیا تکلیف ہوتی ہے، کس مرد میں نبض کیسی چلتی ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آدمی غور نہیں کرتا ہے اور مشق نہیں کرتا ہے۔ نبض کے بارے میں طباء کہتے تھے کہ صاحب جو ہے یہ بدن کا وہ عمل ہے کہ جس سے کہ بدن کے اندر ہونے والی تمام تبدیلیوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے یا دیکھا جا سکتا ہے، اور اسی لیے بہت عرصے تک نبض کے اوپر بہت ایمفیسائز کیا جاتا رہا۔ لوگ نبض کو اب دیکھتے رہے اور آج بھی نبض کی اپنی اہمیت ہے، لوگ اس کو استعمال میں لاتے ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو طبیب ہے وہ اپنی حذاقت پر اس کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا نبض کو سمجھتا ہے، کتنا نبض کے بارے میں جانتا ہے، کتنا نبض کو محسوس کر سکتا ہے۔ جب آپ 100-200 مریض 500 مریض دیکھیں گے تب یہ اویئر کرنا پڑتا ہے، آپ کو سینس آف ٹچ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، انگلیوں کو آپ کے، تو اس کے حساب سے وہ چیز بتائی جا سکتی، ویسے ڈیفائن نہیں کی جا سکتی۔ وہ یہ سینس آف ٹچ کا میٹر ہے۔ کبھی نبض ہوتی ہے تو اس میں دو دلالتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی کا بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، ایک آدمی زیادہ قوت بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہے لیکن آدمی اگر قوی ہے، جب بھی اس کی نبض قوی ہوگی، وہ پلس جو ہے، وہ نبض جو ہے وہ انگلیوں پر باقاعدہ 3 حصوں میں ہمارے لگے گی، اور ہم اس سے سمجھیں گے یہ نبض جو ہے وہ قوی ہے اور آدمی کے اندر قوت ہے۔ اگر نبض جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کا ملمس ہلکا سا جو ہے معمولی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، ہم اس سے محسوس کرتے ہیں کہ اس کی مزاج میں اس کی کیا حرارت ہے یا برودت ہے، یا اس کے مزاج میں صفراویت ہے یا بلغمیت ہے۔ اسی کے اعتبار سے ہم سمجھتے ہیں اور اسی اعتبار سے نبض دیکھتے ہیں۔ اب جیسے میں ایک جنرل چیز آپ کو بتا دوں کہ خلط بلغم کے فساد کے نتیجے میں جو نبض ملے گی وہ لین اور بتی کہلاتی ہے، اور سودا کے امبیلنس کے نتیجے میں جو نبض ہوتی ہے وہ سلب اور مختلف کہلاتی ہے، اور صفرا کے امبیلنس کے نتیجے میں جو نبض ہوتی ہے وہ سری ہوتی ہے، یعنی تیز ہوتی ہے اور کنٹینیوس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ دم کے نتیجے میں یا خون کی خرابی کے نتیجے میں جو نبض ہوتی ہے وہ نبض عظیم کہلاتی ہے۔ یہ موٹی موٹی قسمیں ہیں۔ وہ امراض کے جن کے اندر ورم ہوتا ہے تو ان ورم کے اندر مخصوص نبض ہوتی ہے۔ بہت ساری عمریں ہیں، ان عمروں کے اعتبار سے ان کی نبض ہوتی ہے۔ بچوں کی نبض الگ ہے، بڑوں کی نبض الگ ہے، حاملہ خواتین کی نبض الگ ہوتی ہے۔ یہ ساری نبضیں ہمارے لٹریچر میں بیان بھی ہے، اور اطباء اپنی مہارت کے اعتبار سے تشخیص مرض کے لیے ان کا استعمال کرتے ہیں۔ بیماریوں کے لحاظ سے جیسے مان لیجیے قبض کی نبض ہے، قبض کی نبض جو ہے بہت وہ
उसकी रफ्तार बहुत सुस्त हो जाती है और स्ट्रोक उसका ज़रा पावरफुल होता है। इसी तरह से लिकोरिया की नब्ज़ है। लिकोरिया की नब्ज़ में एकदम सूरत होती है और सूरत के साथ साथ उसमें इख्तलाफ होता है। उसको नब्ज़ पे हाथ रखते ही हम उसको बता देते हैं कि साहब ये लिकोरिया की नब्ज़ है, या जरियान की जो धात वात की शिकायत लेके आते मरीज़ उनकी, या खांसी आ रही है उनकी, इस तरह की मुख्तलिफ नब्ज़ें हैं। और नब्ज़ों की जो मुरक्कब किस्में हैं, मुफरद मुरक्कब मानी जाती है। मुफरद तो 10 किस्में हैं कोई, और मुरक्कब जो किस्में हैं वो कोई 27 के करीब हैं। इस सिलसिले में एक बात ये भी काबिल ज़िक्र है कि मरीज़ ये समझता है कि हकीम साहब ने सिर्फ उसकी नब्ज़ देखी, हालांकि हकीम साहब ने जब वो कमरे में दाखिल हो रहा था तो उसके चलने का अंदाज़ भी देखा और उसका चेहरा भी देखा, उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है ये भी देखा, वो जब आके बैठा और उसके बताने का अंदाज़ भी देखा, और उसके साथ साथ उसकी नब्ज़ भी देखी। इन चीज़ों से सारी मालूमात हासिल होती है और ये सारी चीज़ें तशख़ीस अमराज में मुआविन साबित होती हैं। मर्ज़ को आइडेंटिफाई करने में मरीज़ की नब्ज़, मरीज़ की आँखें और मरीज़ की ज़ुबान और उसका पूरा हुलिया इस बात की तरफ रहनुमाई करता है और मदद करता है कि इसके जिस्म में कौन सी खिल्त गालिब है। एक डिटेल्ड असेसमेंट के बाद ही हकीम मरीज से बातचीत करता है। रुदारे मरीज यानी केस हिस्ट्री लेना इसलिए जरूरी है ताकि बीमारी की सही पहचान की जा सके। देखिए, जहाँ तक इलाज मुआलजे का सिलसिला है, वो चाहे तिब्बे यूनानी हो या कोई और पैथी, बग़ैर इम्तिहान मरीज़, रुदाद मरीज़, कोई भी तशख़ीस मुकम्मल नहीं हो सकती। मरीज़ों की रुदात जो है वो पूरी कहानी उसकी सुनी जाती है और उससे इस नतीजे पहुंचा जाता है कि ये तकलीफ़ कितने दिनों से है, ये तकलीफ़ कहीं ख़ानदानी तो नहीं है, या ये तकलीफ़ कहाँ से आई है। जो भी मरीज़ आता है हम सबसे पहले उसकी फेस रीडिंग देखते हैं और उसकी नब्ज़ देखते हैं। नब्ज़ के मुताबिक भी पता लग जाता है कि मरीज़ किन कैफियत से, किन हालात से गुज़र रहा है। उसके मुताबिक हम उसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री लेने के बाद बहुत कम इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पेश आती है, जिससे हम कंफर्म करें कि असल मर्ज़ क्या है इसे। मरीज़ को दाखिल होने के बाद उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए, यानी फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए, मरीज़ का मुआयना किया जाए और मरीज़ के मुआयने के बाद फिर तशख़ीस की जाए। यानी बग़ैर मरीज़ की रुदात के हम ये जान ही नहीं सकते कि मरीज़ के अंदर क्या तब्दीलियाँ कब से वाक़ई हुई और उनके लिए मरीज़ ने क्या क्या कोशिशें की और मरीज़ किस हद तक अपनी उन कोशिशों में कामयाब हुआ और अपने मर्ज़ को दूर करने में उसको जो है मदद मिली। उसके बाद फिर जो है उसका इम्तिहान मौजूदा वक्त में उसके अंदर क्या तब्दीली वाक़ई हुई है, क्या उसके अंदर मिल रहा है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए एग्ज़ामिनेशन के बगैर काम नहीं चल सकता। और तीसरा तरीक़ा फिर जो है उसके लिए तशख़ीस के लिए ज़रूरी है, वो है तफ़ातीश या इन्वेस्टिगेशन। तशख़ीस के मौजूदा दौर के जो मशीनरी और इक्विपमेंट्स हैं, इनके ईजाद से पहले अतिब्बाए कराम मरीज़ का नज़री मुआयना करके या हाथ से छू करके, टटोल करके, ठोंक बजा करके और ख़ास तौर से नब्ज़ के ज़रिए से बौल व बरास को देख करके और कई मरतबा बलगम का मुआयना कर करके बीमारियों की तशख़ीस किया करते थे। इस ज़माने में हम उन सारी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो लैब इन्वेस्टिगेशन जिनको कहा जाता है, यानी कुछ खून और पेशाब, बरास, बौल और बरास का इम्तिहान भी कराया जा सकता है। ये चीज़ें हमारे यूनानी के हिसार से बाहर नहीं हैं। अब इन सब मशीनरी और इक्विपमेंट्स का सहारा अब अतिब्बा भी लेने लग गए हैं ताकि बीमारी की तशख़ीस जो है पूरी तरह से हो सके, ताकि उसका मुआलजा भी अच्छी तरह से किया जा सके। बेस लाइन बनाने के लिए अगर हम मान लीजिए सिर्फ नब्ज़ देख करके या कुछ हाल चाल पूछ करके उनके जो है दवाएँ लिख दें और फ़ायदा हो जाए तो लोग मानेंगे नहीं। इसीलिए इस ज़माने में हमारे पास जो जदीद टेक्नोलॉजी से लैस पैथोलॉजी लैब और बायोकेमिस्ट्री लैब मौजूद है, उसमें हम उसकी पूरी तरह से जांच करवाते हैं। जांच करवाने के बाद जब तशख़ीस मुकम्मल हो जाती है फिर उसके बाद हम दवा शुरू करते हैं। नब्ज़ के अलावा यूनानी तिब में 2 और तफ्तीश के तरीक़े हैं जिनके ज़रिए बीमारी की जड़ तक पहुंचा जा सकता है। इनमें से पहला है बौल और दूसरा है बराज। आइए जानें अपने माहिरीन से। कारूरा कहा जाता है, वो कारूरे की कई किस्में हैं। उसमें रंग के हिसाब से देखा जाता है, बू के हिसाब से देखा जाता है, क़वाम के हिसाब से देखा जाता है। मुख्तलिफ़ बीमारियों में रंग भी तब्दील हो जाता है, क़वाम में भी तब्दीली हो जाती है। जैसे जैसे रंग जर्दी माइल बढ़ता जाता है, तिब की नज़र में ये समझा जाता है कि ये हरारत की तरफ यानी गर्मी की तरफ इसका रुझान ज़्यादा है। तो इस लिहाज से हमको कारूरा देख करके अंदाज़ा हो सकता है कि मरीज़ के बदन की दर्जा हरारत कैसी है। उसी से बीमारियों का अंदाज़ा होता है कि किस बीमारी में क्या चीज़
तब्दीली आती है उसके अंदर, बॉल के अंदर, और उसी बेस पे उसको असेस किया जाता है कि इसको ये बीमारी हो सकती है। इस वक्त मरीज़ यहाँ पर एडमिट हैं वो ज़्यादातर जो है फालिज के एडमिट हैं या फिर उनके जो है दिमागी मराज के एडमिट है जिसके अंदर जो है बलगम की ज़्यादती होती है। तो हम ऐसे मरीज़ों को मुंज़िज बलगम देने के बाद फिर देखते हैं कि इनके जो बॉल है उसके अंदर क्या अलामात आ रही हैं, नुज़ की अलामात आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मुंज़िज बलगम देने के बाद जो अलामात नुज़ की आती हैं वो हम बॉल से पता कर पाते हैं। फिर एक बार जब मादा जो है पक जाता है, मादा जो है नुज़ुज पा जाता है, तो मादे के नुज़ुज होने के बाद फिर हम दवाओं से उसका तनक़िया करते हैं जिससे जो है बीमारी का इज़ाला करते हैं। जैसे हम देखिए कुछ पेशेंट यहाँ पर अभी एडमिट हुए हैं तो उनके जो बॉल का रंग है वो दूसरा है। जैसे ये पेशेंट जो है सिर्फ 3 दिन पहले एडमिट हुआ है तो इसके बॉल के अंदर नुज़ुज की कोई अलामत नहीं है। इस बॉल का रंग जो है सफ़ेदी माइल है, इसके अंदर थोड़ी ग़िल्ज़त है और इसके अगर हम रसूब देखें तो इसके रसूब भी थोड़ी देर तक कायम रह रहे हैं, मतलब कि मादा इसके अंदर जो है कोई गलीज़ मादा मौजूद है जिसकी वजह से इसके रसूब इस वक्त मौजूद हैं। इसके बलमुक़ाबिल हम देखें पेशेंट जो है जो पिछले 15 दिन से दवा खा रहा है तो इसके बाद हमें लग रहा है कि इस मरीज़ के बॉल के अंदर जो है नुज़ुज के अलामत मौजूद हैं और इसका रंग तब्दील हो रहा है। इसके अलावा जो है इसके अंदर कोई कदूरत नहीं है, ये कारूरा शफ़ाफ़ है, इसका रंग जो है वो तिबनी की तरफ माइल है। अगर पेशाब ग्रीनिश है यानी वो हरेपन में ज़्यादा है तो उसमें इम्कानात ज़्यादा होते हैं कि वो इन्फेक्शन है, तादिया है, तो उसके लिए भी हम कल्चर एंड सेंसिटिविटी का टेस्ट करा के देख लेते हैं। इसी तरह से रंग के और रसूब के अलावा कारूरे का जो है वो उसकी मिक़दार के ऊपर, उसकी बू के ऊपर भी दलालत की जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कारूरे की मिक़दार इस पर मुनसर करती है कि मौसम क्या है, पानी कितना पिया जा रहा है, यानी बदन के अंदर हाइड्रेशन कितना है। पेशाब उसको बार बार आ रहा है और ज़्यादा मिक़दार में आ रहा है तो हमें महसूस करते हैं कि मुमकिन है कि इनको ज़ियाबतस सुकरी की बीमारी हो, तो उसके लिए भी हम जांच कराते हैं। पेशाब से पहले जलन होता और हर 2-2.5 घंटे में एक वक्त पेशाब करना पड़ता है। अगर पेशाब करने में देरी हो गई तो कंट्रोल से बाहर पेशाब कपड़ों में हो जाने का खौफ रहता। मुझे इनकी दवाइयों से फ़ायदा हुआ है। एक चीज़ जो बीच में माने दरमियान में हायल है वो ऑब्स्टेकल, वो उम्र का तकाजा है। वो उम्र जैसा आदमी की बढ़ती रहती है डिजेनरेशन होता है। बोल और बरास की जांच भी तशखीस का एक ज़रूरी हिस्सा है। खान पान की तासीर और वक्त की खासी अहमियत होती है। बोल और बरास की मुकम्मल जांच करने के बाद ही मर्ज को ठीक से समझा जा सकता है। तो दूसरा अहम जो हिस्सा है वो बरास का है। बरास कहते हैं इजाबत को, यानी जो रोज़ाना आदमी को इजाबत होती है, खारिज होता है बदन से। जैसा कि हम जानते हैं कि एक तबई अखराज जो है वो कैसा होना चाहिए और हम उसको देख करके कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कोई बीमारी के उनसुर हैं या नहीं हैं। बराज में ऐसा है कि जैसे मुख्तलिफ़ किस्म के ये आम मुशाहिदा है कि किसी को पेचिश होती है तो उस तरह का बराज अलग होता है कि उसमें आव भी आ रही है, शुद्धा सा भी हो जाता है। मरीज़ों को जो सबसे ज़्यादा शिकायत मिलती है वो दो ही मिलती हैं कि या तो बॉल जो है वो रकीक है या बहुत ही जिसको कहते हैं कब्ज़ की शिकायत है, बहुत ही सकील है। अगर उसको डायरिया है यानी इसहाल है तो उसमें पतले से दस्त आते हैं, कभी पीले होते हैं, कभी पानी की तरह होता है, कभी सलाइन की तरह होता है। बोलो बरास की भी जांच करवा के देखते हैं कि उसमें रूटीन में क्या पोजीशन है, माइक्रोस्कोपिक पोजीशन क्या है उसकी। नज़री मुआयना के बाद देखना होता है कि क्या रंगत है उसकी, क्या बीमारी हो सकती है। तो इसलिए बरास की अहमियत इस माना में भी है कि हम ये देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया मरीज़ का इस्तेहालाए बदनी जो है वो तबई की तरफ है या नहीं है। अगर तबई की तरफ नहीं है तो बरास के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होने लगेंगी और नतीजतन हमें कुछ तशख़ीस में मदद मिल सकेगी कि ये मर्ज़ किस तरह का हो सकता है। इसके अलावा इंसान के अखलातों और मिजाज को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस्म के चारों अखलात और असबाब सित्ता ज़रूरिया का आपसी तालमेल बेहद ज़रूरी है। कुल मिलाकर ही ये सब तय करते हैं कि आगे चलकर इंसान को कौन सी बीमारी होने का ख़तरा है। अखलात का नज़रिया हमारे तिब्बे यूनानी का अहम नज़रिया है और इसका बानी बुकरात है। सबसे पहले बुकरात ने इस नज़रिए को दिया था और उसने बतलाया था कि जिसमें 3 तरह की चीज़ें होती हैं। जितने ठोस चीज़ें होती हैं वो आज़ा कहलाते हैं, ऑर्गन कहलाते हैं, और जितने तरल पदार्थ होते हैं वो अखलात कहलाते हैं, और जितने हवाई चीज़ें होती हैं वो अरवाह कहलाते हैं। दरअसल ये बात समझने की ज़रूरत है कि यूनानी तरीक़े इलाज में ये बात तस्लीम की जाती है और हज़ारों साल के तजुर्बे से ये बात साबित हो चुकी है कि इंसान के जिस्म में 4 अखलात पाए जाते हैं जिनको अंग्रेज़ी में ह्यूमर्स कहा जाता है।
जिनमें से एक खून है, एक सफ़रा है जिसको पित्त कहते हैं, और एक सौदा है जिसको ब्लैक बाइल कहते हैं, और एक बलगम है। अखलात वही हैं जो रगों के अंदर पाए जाते हैं, रगों के बाहर पाए जाने वाले अखलात नहीं हैं। खून हार रतब है, सफ़रा हार याबिस है, बलगम बारिद रतब है, और सौदा बारिद याबिस है। ये चार ह्यूमर्स, ये चार अखलात, ये जब इंसान के जिस्म में नॉर्मल होते हैं अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी के एतबार से, तो इंसान का जिस्म नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन जब इनमें से कोई एक भी ह्यूमर या एक भी खिल्त अपनी क्वांटिटी और क्वालिटी में डिस्टर्ब हो जाती है और वो एबनॉर्मल हो जाती है, तो उससे रिलेटेड बीमारी होती है। मिसाल के तौर पर सफ़रा, जिसको येलो बाइल या पित्त कहते हैं, वो जिस्म में एबनॉर्मल हो जाता है, यानी उसका एक्सेस फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, उसका बनना ज़्यादा हो जाता है, तो फिर गर्म और खुश्क बीमारियां उस जिस्म में लाहिक होने लगती हैं। जैसे सोरियासिस है, जैसे एक्ज़मा है, जैसे ख़ारिश है। ये ज़्यादातर येलो बाइल के डोमिनेशन की वजह से होती हैं, और येलो बाइल का मिजाज और टेम्परामेंट है ड्राई एंड हॉट। कि मेरा रोग ऐसे कैसे हो गया वो हमें जानकारी ना है, कोई फायदा नहीं बुझाया, तो आज हमने यहाँ आ गए। नोचनी सारी बदन में लगता है, खुजलाहट आते हैं, नींद नहीं आती है, चिंता में रह जाते हैं, रात भर नींद नहीं आती है, उठ बैठ करके खाकते भी है, नोचते भी है, और ये रात दिन चिंता से लगता है कि कब हम मर जाऊँ, कभी क्या हो जाऊँ, हमको अकल काम नहीं करता, दिमाग में पागल जैसा लगता है। हम यही चाहता हूँ कि हमें किसी तरीके से यहाँ आया हूँ हॉस्पिटल में, मैं अच्छा हो करके घर चले जाऊँ तो और बढ़िया बात है। महसूस करता हूँ कि कहीं लोग बाग जगह उठने बैठने में हमको शर्म लगता है, इसी वजह से। लिहाजा ऐसे मरीज़ से हम ये कहते हैं कि वो गर्म और खुश्क चीज़ों से परहेज़ करे। खा जाती बहुत, खाई बहुत आती थी, है तो कुछ कम है, इलाज करने कुछ कम है। 1 साल से मेरा आराम नहीं था, आराम हो गया है। हम मरीज़ को देखते हैं फौरी तौर पर, उसकी कैफियत देखते हैं, उससे हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद फिर उसको तशख़ीस भी करा के और दवाएं देते हैं। कभी कभी एक ही मर्ज़ के 2 मरीज़ होते हैं, लेकिन दवा मुख्तलिफ होती है, चूँकि दोनों का सबब अलग होता है। मिसाल के तौर पर एक मरीज़ नज़ले की शिकायत लेकर आता है और दूसरा मरीज़ भी नज़ले की शिकायत लेकर आता है, लेकिन एक को मिजाज में हरारत की वजह से नज़ला हुआ है और एक को मिजाज में बरूदत के गलबे की वजह से नज़ला हुआ है। इसलिए हरारत और बरूदत यानी गर्मी और सर्दी सबब है, लिहाजा जो गर्मी का सबब है जिस मरीज़ में, उसके लिए दूसरी दवाओं का इंतखाब होगा, और जिस मर्ज़ का सबब सर्दी है और बरूदत है, उसका इलाज बिल्कुल दूसरी दवाओं से होगा। यूनानी तिब में इंसान के मिजाज और तबीयत पर ख़ास तवज्जो दी जाती है। जब तक कि मरीज़ के मिजाज की पूरी तरह से शिनाख्त न कर ली जाए, किसी भी तरीक़े के इलाज की शुरुआत नहीं की जाती, और यही वजह है कि ये इलाज हर मरीज़ के लिए एक अलग और नए तरीक़े से ही तैयार किया जाता है। यूनानी की बुनियाद जो है वो मिजाज के ऊपर है। हम आम ज़बान में लोगों को समझाने के लिए एक बात ये कहते हैं कि यूनानी के अंदर मरीज़ का इलाज किया जाता है, मर्ज़ का इलाज नहीं किया जाता। हमारे सामने वो पूरा मरीज़ होता है सर से पैर तक, कोई एक खुसूसी मर्ज़ नहीं होता, और हमारे सामने उस पूरे मरीज़ का मिजाज होता है। तबीयत इंसानिया एक तिब्ब यूनानी का अहम नज़रिया है, और ये नज़रिया एक ऐसा नज़रिया है जो दूसरे तिब्बों में नहीं मिलता, बल्कि कुछ न कुछ दूसरी तिब्बों में किसी और नाम से, जैसे आयुर्वेद में प्रकृति के नाम से और मॉडर्न में जो है फिज़िक्स के नाम से ये नज़रिया मिलता है। यानी मुख्तलिफ़ वक्तों में पैदाइश से लेके मौत तक तबीयत जो है कुछ ना कुछ काम करती रहती है, आखिर वक्त तक ये कोशिश करती रहती है कि इंसान ज़िंदा रहे। तो यूनानी में अमराज़ मुज़मना में ये चीज़ बड़ी मुआविन होती है कि हम पूरे मरीज़ का बहैसियत मजमूई उसका मिजाज का तयन करें, उसके मिजाज के एतबार से अगर मिजाज के अंदर कोई ख़राबी वाक़ई हुई है तो ख़राबी को ठीक करें बहैसियत मजमूई पूरे मरीज़ की। अगर ये मिजाज सही रहेगा तो इंसानी जिस्म में सेहत रहेगी, और अगर ये मिजाज ख़राब हो जाएगा तो इंसानी सेहत भी ख़राब हो जाएगी, और जब तक ये खिल्क़त जिस्म के अंदर बाकी रहेगी इंसान जो है ज़िंदा रहेगा। उसके बाद जब ये खिल्क़त जो है खुश्क हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, तो इंसान भी ख़त्म हो जाता है। असबाब सित्ता ज़रूरिया, ये वो 6 ज़रूरी उसूल हैं
جن کا سیدھا رشتہ انسان کی صحت یا بیماری سے ہے۔ یہ وہ قوانین ہیں کہ جن پر اگر ہم قائم رہ سکے تو ہم کئی بدنی اور دماغی تکلیفوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ طب کا جو دار و مدار ہے وہ چونکہ ہولسٹک اپروچ ہے اس کی، اور اس میں پورے بدن کو ایک یونٹ کے طور پر مان کر کے اس کی اصلاح اور اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ اس لیے جو بھی بدن میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جو بھی تغیر تبدیلیاں آتی ہیں، ان کے لیے چند چیزیں ضروری ہیں جو طب بیان کرتا ہے، اور ان کا نام مجموعی طور پر اسباب ستہ ضروریہ کہا جاتا ہے۔ یہ 6 وہ اسباب کہ جن کی روشنی میں ہم بدن کے بارے میں صحیح بات سمجھ سکتے ہیں۔ اسباب ستہ ضروریہ یہ ایک لائف اسٹائل کے انگریڈینٹس ہیں۔ اگر اسباب ستہ ضروریہ ہمارے پراپر ہیں تو پھر ہماری لائف اسٹائل پراپر ہے۔ اسباب ستہ ضروریہ میں ایک تو ہوا کا تصور بتایا جاتا ہے، دوسرا معقول و مشروب یعنی کھانے پینے کی شے، تیسرا سونے کا ٹائم اس کا ہونا چاہیے، آرام کرنے کا ٹائم ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ حرکات و سکون بدنی یعنی فزیکل ایکٹیویٹیز، دوسرا حرکات و سکون نفسی یعنی کہ مینٹل اور سائیکولوجیکل عوامل ہیں، اور آخری جو ہے وہ ہے استفراغ و احتباس یعنی کہ جو بدن میں جن چیزوں کو رکنا چاہیے وہ رکیں اور جن کو نکل جانا چاہیے وہ نکل جائیں۔ یہ ساری چیزیں طب میں پہلے ہی سے موجود ہیں کہ اسباب ستہ ضروریہ پہ اگر آپ قائم ہیں تو ٹھیک ہے، صحت کی بقا رہتی ہے۔ اسباب ستہ ضروریہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھانا پراپر وقت پہ کھائیں، جو کچھ کھانا چاہیے وہ ہم کھائیں، ہم کو پراپرلی سانس کی ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجنیٹڈ ایئر کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم کو صبح کے وقت جہاں پولوشن نہ ہو جس ایئر میں، وہ ایئر ہم کو زیادہ سے زیادہ انہیل کرنا چاہیے تاکہ ہمارے لنگس اور جو برونکیولس ہیں وہ کھلیں اور انہیں زیادہ سے زیادہ آکسیجن پہنچ سکے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ آکسیجن پہنچے گی تبھی بلڈ پیوریفائی ہوگا، اور جب بلڈ پیوریفائی ہوگا تبھی آرگنس کا نیوٹریشن ہوگا، اور آرگنس کا نیوٹریشن ہوگا تو پراپرلی انسان کا جسم جو ہے وہ صحت مند رہے گا۔ تو طب یونانی کا جو یہ کانسیپٹ ہے، جو یہ طریقہ ہے کہ اسباب ستہ ضروریہ کو سامنے رکھ کر کے صحت کے بارے میں معلومات رکھیں، اور جو پیرامیٹر یا جو طریقے بتائے گئے ہیں ان کے تحت وہ اپنے آپ کو پرکھ لیں کہ ہم صحت مند ہیں یا نہیں ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے اسباب ستہ ضروریہ کا بیشتر استعمال جتنا وہ کر سکتے ہیں، جتنا ان کی معلومات ہے اتنا ان کو کرنا چاہیے۔ تو آج کی اس کڑی میں ہم نے یونانی طریقہ علاج میں کام آنے والے تشخیص کے طریقوں کے بارے میں سمجھا اور جانا، جہاں ایک طرف نبض، بول و براز جیسے طریقوں کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف مزاج، طبیعت اور اخلاق کا اسباب ستہ ضروریہ کے ساتھ کے توازن پر بھی بحث کی جاتی ہے۔ ایک صحیح ڈائگنوسس ہی پورے اور پکے علاج کی نیو ہے، اور ایک ماہر طبیب کو دکھانے کے بعد ہی صحیح طریقہ علاج کا آغاز ہو سکتا ہے۔ تو آج کی اس کڑی میں بس اتنا ہی۔ آپ سبھی کی تندرستی اور لمبی عمر کی دعا کرتے ہوئے میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے موڈس آف ٹریٹمنٹ کی۔ خدا حافظ۔ پرکھوں سے ملا ہے خزانہ یہ ہم